ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਫੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਣਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी चले जाते हैं, मनप्रीत अयाली वारिस पंजाब दे किसी मोमेंट भी जा सकते हैं। जिस बंदे ने उनको ज्वाइन कराया भगवंत मान जी, इनके ही शब्द हैं कि ये चले कारतूस है। सेकंड वाला मनप्रीत अयाली ने मौजूदा सत्ता वाली पार्टी नहीं ज्वाइन करी, इसलिए हम उसको उस नजरिए से नहीं देख सकते। 4 इलेक्शनें हारने वाले बंदे को बीजेपी ने स्टेट प्रेसिडेंट लगा दिया, तो प्रेसिडेंट क्या सेट करना चाहती है बीजेपी? क्रिकेटर हरभजन सिंह ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ सांसद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਦਾਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗੱਦਾਰ ਟ੍ਰੇਟਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਖੋਲੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕਾਊ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਈਬ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ। डॉक्टर सुखी बंगे से अकाली दल का बंदा इन्होंने ज्वाइन कराया, अकाली दल ने उसकी जाके कंध पे लिखा गद्दार। वो क्लियर कट तो बंदा कह गया कि मेरे को गद्दार कह रहे हो, तो जाके अपनी पार्टी के सुप्रीमो से पूछ लो कि किसने मेरे से क्या लिया, मेरे से लिया नहीं लिया, जो भी उसने एग्जैक्ट गद्दारी नहीं है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। वही कोई एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में ये देना था, ये लेना था, ये सब हो रहा था। इस तरीके से आपने किसी ट्रांजैक्शन के थ्रू कोई पॉलिटिकल पोस्ट दी थी, तो गद्दार कहने की आपका हैसियत क्या है? आप कौन होते हो? वो तो आपने ट्रेडिंग करी थी ना। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਫਿਤਰਤ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਸਾਤੀ ਟੱਟੂ, ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਫੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਣਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ 3 ਜਾਂ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੀਨ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੌਕਾ ਪਰਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਮਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਲ ਬਦਲੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਉਹ ਘਿਰਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਹੀਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਸ ਦਲ ਬਦਲੂ ਪੁਣੇ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ रितेश जी? ये अकेला फिनोमिनन पैन इंडिया इस वक्त चल रहा है। अपने देश के बहुत सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री दूसरी पार्टियों से आए हैं। असम का मुख्यमंत्री कांग्रेस में था, कांग्रेस से बीजेपी में गया, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया। अब बंगाल दी इलेक्शन देखी, वेस्ट बंगाल का जो मौजूदा मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया,
वो किसी टाइम पे तृणमूल कांग्रेस का फाउंडर मेंबर रहा और उस पार्टी का मेन आगुओं में से था ममता बनर्जी के साथ। तो कुछ इसमें से इसके दो वाइफरकेशंस मैं समझता हूँ। पहला वाइफरकेशन ये कि वो बंदे जो अपनी किसी ना किसी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने अपनी पार्टी चेंज करी। दूसरे वो बंदे जिन्होंने अपनी होंद बचाने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए पार्टियां चेंज करी। आपने 2-3 लीडरों के नाम लिए पंजाब के। सुनील जाखड़ उन बंदों में से हैं जिन्होंने अपनी इश्यूज को आगे रख के जिस वजह से पार्टी चेंज करी, वहां पे कोई लालच या उस वजह से मैं ऐसा नहीं मानता। दूसरा एक बंदे का आपने नाम लिया जो अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट बनाए गए। अब वो बंदे की कंट्रीब्यूशन क्या थी कांग्रेस में कि 2017 में टिकट मिली, 17 की इलेक्शन हारी। 2019 की लोकसभा इलेक्शन की टिकट मिली कांग्रेस से, वो इलेक्शन हारी। 2 इलेक्शन ये हारी। उसके बाद 2022 में फिर कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़ी शायद, वो इलेक्शन भी हारी। फिर 2024 में फिर बीजेपी की टिकट पे लोकसभा लड़ी, फिर वो हारी। मतलब 4 इलेक्शन है जो मेरे को याद है, बाकी पता नहीं। आई मे बी रॉन्ग, आप करेक्ट कर लो मेरे को। 4 मेरे को याद है। 4 इलेक्शनें हारने वाले बंदे को बीजेपी ने स्टेट प्रेसिडेंट लगा दिया। तो प्रेसिडेंट क्या सेट करना चाहती है बीजेपी? कोई दल बदलू इस तरह का होता है जिसने इलेक्शनें जीती हुई हैं, जिसके पास वोट बैंक है, अपना कोई बेस है, कार्डर है, या उसकी पैन पंजाब फॉलोइंग है। 117 हलकों में से 50-55 हलकों में 2-4-5 हज़ार वोट उसके फेस वैल्यू के साथ जुड़ी है, तो फेस बनाते। फेस बीजेपी क्राइटेरिया क्या कर रहा है? इंटरेस्टिंगली हम साडा ब्रॉडर इशू तो लीडरशिप है, बट ये एग्जांपल से क्योंकि मैंने शुरुआत की, सो वी डोंट वांट टू डिस्कस कि बीजेपी ने सही किया है नहीं किया, बट पॉइंट इज कि दल बदलू ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਹੋਏਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਪੈਰਾ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਣਬੇ ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਸਕਸੈਸਿਵ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਰਜਿਕ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਮੇ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਡਿਊਲੀ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਟੂ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ ਫॉर दीज लीडर्स। लेकिन राजनीति ਲਈ ਲਾਰਜਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ? लार्जर मैसेज ये है कि ग्राउंड पे लीडर्स की स्केरिसिटी है, लीडर्स की कमी है। इसलिए वही 4-5-10 जो बंदे हैं वो डिमांड में है कि वो उधर भी जा रहे हैं। ए पार्टी भी बुला रही है, बी पार्टी भी बुला रही है, सी पार्टी भी बुला रही है। आपको याद होगा अपना पहला प्रोग्राम का टाइटल यही है, लीडरशिप क्राइसिस इन पंजाब जी। तो ये इस बात का एविडेंस है कि लीडरशिप क्राइसिस कितना लेवल पे है कि आपको पूरे पंजाब में 117 हलकों में 23 जिलों में नवे बंदे नहीं मिल रहे। आप 4 बारी 5 बारी इलेक्शन हारे हुए बंदे को प्रधान बना रहे हो या अपनी पार्टी में लाके इलेक्शन लड़ा रहे हो। अलग अलग लेवल पे पार्टी प्रेसिडेंट इज सेपरेट टॉपिक। आप एमएलए की बात कर लो या 13 एमपी सीटों की बात कर लो, आपके पास बंदे ही नहीं है। मतलब ना, इट्स नॉट ओनली फॉर बीजेपी, इट्स फॉर कांग्रेस एज वेल, इट्स फॉर आम आदमी पार्टी, इट्स फॉर अकाली दल। संगरूर से एक लीडर हैं जो बीजेपी छोड़ के अकाली दल गए और उनको हल्का इंचार्ज बनाया हुआ है, अरविंद खन्ना। यस, नहीं अरविंद खन्ना तो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣੇ, ਹਾਰੇ ਵੀ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਬੀਜੇਪੀ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਮੇਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, बीजेपी, अगेन कांग्रेस, मतलब और कोई बंदे नहीं है संगरूर में। मतलब चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी ने लिया या कांग्रेस ने लिया या फिर अकाली दल ने लिया, इसका मतलब ऑन ग्राउंड रियलिटी इज कि सही लीडर नहीं है जिनके पास 15 से 20 हज़ार वोट का अपना बेस हो।
वो बंदे नहीं है। और जब वो बंदे देखते हैं कि जिनके पास इंडिविजुअली 10,000, 8,000, 20,000 वाले तो बंदे नहीं गिरते जी, अब पहले बहुत डिस्कस कर चुके। 10,000 के दरमियान या 10 से 5,000 के दरमियान के जो लीडर हैं वो डिमांड में इसलिए है क्योंकि 20,000 वाला जो विनिंग कैंडिडेट है वो तो है नहीं। विनिंग कैंडिडेट है जिसके पास 20,000 प्लस इंडिविजुअल फेस वैल्यू की वोट है, वो किसी भी पार्टी में चल जाए, मेन पार्टी में जिसकी 20-22,000 वोट है सिंबल पे, वो निकाल लेगा। तो अब ये 8-10,000 वाला जो सेगमेंट है ये सबसे बड़ा दल बदलू है। 20,000 वाला दल बदलू नहीं है। आई रिपीट, 20,000 वाले के पैर बहुत पक्के हैं, वो नहीं बदल रहा। आप उनके नाम अपने सामने ला सकते नहीं, लेकिन ਇੱਥੇ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਿਹਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਡੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸੀਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, MP ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 20-25-30,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਬੇਟਾ आजाद लड़ सकता है या चब्बेवाल अपनी पार्टी बदल सकते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट्स ना। क्या राणा इंद्र प्रताप ने कांग्रेस का कोई ओहदा ले रखा था? तो वो दल बदलू तो नहीं है। ही केम इन पॉलिटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ਵੀ ਫਾਦਰ ਉਨਕਾ ਜੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ वन पार्टी वन टिकट फॉर्मूले ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। क्या वो ऑफिशियली कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा था सुल्तानपुर लोधी से? क्या कांग्रेस का कोई पोजीशन ले रखी थी? कोई छोटा मोटा ओहदा सही कुछ ले रखा था? नहीं ले रखा था। इट्स ही वाज एन आउटसाइडर फॉर द पॉलिटिक्स फॉर द कांग्रेस एज वेल। हाँ, his father was MLA। पर किਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ? प्रताप बाजवा के केस में फिर क्या बोलोगे आप? तो मैं तो वही तो कह रहा है ना, मैं तो वही कह रहा है, मैं तो नहीं वो चीज कह रहा। हाँ, एक ही कार्य हो गया, लेकिन दैट इज अगेन अपॉर्चुनिज्म ना। वो भी अपॉर्चुनिज्म है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन इधर कांग्रेस का लगा हुआ, उधर बीजेपी का झंडा लगा हुआ, वो तो एलओपी है। वो तो फिर भी एलओपी नहीं, वो तो दल बदलू है, सीधा है। फतेह बाजवा इज दल बदलू, यू नो। वी आर नॉट डिफेंडिंग एनीबॉडी ना। मैं फैमिली की बात कर रहा हूं कि ये मतलब नहीं कि फादर वो था। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, नाइदर क्रिटिसाइजिंग एनीवन। मैं ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਵਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੀ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਵਰ ਹੈਪੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਲਓ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾर्टी ਲਈ भी लड़ सकते ਸੀਗੇ, लेकिन उन्होंने नहीं लड़ाया ना। ठीक है, लेकिन इसका मतलब उनके हाथ पल्ले कुछ था इंडिपेंडेंट जीतना। वो भी उसमें जिस टाइम पे वेव चली है जी, एक साइडेड वन साइडेड वेव चली, उस वेव में जीतना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बड़े बड़े लीडर हार गए, उस टाइम पे वो जीतना। तो मैं तो ये समझूंगा उसमें पार्टी की मूर्खता ज्यादा थी कि ऐसे कैंडिडेट को उन्होंने छोड़ा। फिर भी इंडिपेंडेंट जीतने के बाद भी सपोर्ट कांग्रेस को ही मिली, उसे मिलेगी, ऐसा तो है नहीं किसी और को। वो तो सब पता, वही तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਨਾਈਵ ਇਨਫ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਦੈਨ देयर वाज नो ਐਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यस, वो पार्टीज की रेलेवेंस कम हो गई है, जो अपन पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज द पॉइंट आई वांट टू। पार्टीज की रेलेवेंस उतनी नहीं है। अगर आपकी इंडिविजुअल लीडरशिप है आपके हलके में, जो अपन शुरू से फर्स्ट डिस्कशन से वही टॉपिक लिया हुआ है कि देयर इज ए सीरियस लीडरशिप क्राइसिस। अगर आप 15 से 20,000 वोट का आपका जनाधार है, आपका बेस है, तो आप उसको कैटापुल्ट करके 35-40 हज़ार तक ले जा सकते हो। और अगर नहीं करना चाहते तो 15-20 हज़ार वोट आप लेके बैठे हो, तो आपको कोई भी पार्टी आपकी मिन्नतें तरले करके ले आएगी। तो वही हो रहा है जो आप सारे नाम बोल रहे हो, वो यही रीजन है। ਜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਰਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। राजकुमार चब्बेवाल का टर्म्स कोई नहीं है वहां पे, आपको भी याद होगा कुछ इंक्वायरियां खुल गई थी, ठीक है,
वो इंक्वायरीज स्टार्ट हुई, इंक्वायरी स्टार्ट होने के बाद बंदे ने ज्वाइन करी, फिर इंक्वायरीज क्लोज हो गई। मेरा ये मानना है, मे बी रॉन्ग, बट इंक्वायरीज खुली जी, बिल्कुल, जितनी मेरी नॉलेज में। बिल्कुल। यहाँ बाकी जिन केसेस की बात करें, वो फिलहाल तो कोई इंक्वायरी अभी तक नहीं थी, कल को आ जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी तक कोई इंक्वायरी वाला सीन नहीं था। तो अब हाँ, ऑब्वियस है 8 से 10,000 वोट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, तभी पार्टियां चाह रही थी कि वो ले जाए। डेफिनेटली कांग्रेस के पास आज भी उस एरिया में नया लीडर बिल्डअप नहीं कर पाए, इतना टाइम निकल गया, फिर भी कोई और बंदा नहीं बिल्डअप किया, क्योंकि पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो बाकी हो, 117 हलकों में बड़े कम हलकों में ही लीडर नर्चर करे हैं, और ऐसे लिमिटेड हलके हैं। लेकिन जहां पे ऐसे लीडर नर्चर हो गए हैं वो निकल जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आदमपुर से पवन कुमार टीनू, अकाली दल ने नर्चर करा, अकाली दल ने एमएलए बनाया, उसके बाद सीपीएस दिया, और जब तक उनकी गवर्नमेंट रही फुल सपोर्ट रहा, वट एवर ही वॉन्टेड टू डू इन दैट एरिया ही डिड, जो चाहता था करा। ठीक है, एक बार इलेक्शन हार गया, वो एक बार इलेक्शन हारने के बाद टॉलरेंस नहीं थी कि वेट कर लूं, तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी को भी चाहिए था कि भाई ऐसा बंदा है जिसने इतने साल एमएलएशिप काटी है। होल्ड ऑन ਇੱਥੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟੇਟਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਦਲੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਨੂ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਔਰ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਨੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸਾਂਭਣ ਲਈ अपनी पार्टी बदलता पे, मैंने बदलनी पैनी है, बिकॉज उसकी लीडरशिप खतरे में है ना। इतना लंबे समय तक पावर में से रहने के बाद जो उसने वर्किंग करके बंदे जोड़े, ये क्राइसिस कांग्रेस के साथ भी सबके साथ है। फिलहाल कांग्रेस के साथ और अकाली दल के साथ बहुत बड़ा है, क्योंकि टाइम लंबा पड़ गया, अकाली दल के साथ बहुत लंबा टाइम पड़ गया। इवन बीजेपी दे फॉर दैट लीडरशिप खत्म हो रही होगी, ਜਿਹੜੇ बीजेपी ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਨੇ, वो तो शुक्र है उनके पास सेंटर की गवर्नमेंट है, तो उसके दम पे कह लो या उसकी सपोर्ट के दम पे वो कंटेन कर रहे हैं, मॉरल सपोर्ट है भी, चलो ठीक है साडी सरकार हैगी। हरियाणा में सरकार है तो उधर के सीएम को लाके फीलिंग दिला देते हैं कि नहीं देखो एक सीएम है, एक सीएम आ जाता है, टर्बन भी डाल लेता है, सीएम आ जाता है, तो वो एक फील देने की कोशिश करते हैं। और कोई प्रभारी क्यों नहीं लगा रहे, हरियाणा के सीएम को ही क्यों बुलाते हैं, वो फील देते हैं कि देखो वी आर इन पावर कंटिन्यूअस, यही सिंबल। क्योंकि लोਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਵੱਖਰਾ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। 50% वोटर्स बिल्कुल इसी बात के साथ है कि जिस लीडर के वो साथ है वो काम करा सकता है या नहीं, उसको पावर है या नहीं, पावर देना सब चलता है। मैं इससे रिलेट करता हूँ, 2-4 दिन पहले हमारी टीम के साथ मीटिंग करने कुछ लोग आए जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सिलेक्ट करना चाहते थे और वहाँ से कंटेस्ट करना चाह रहे थे। बंदे ईमानदार थे, लेकिन आउट ऑफ पावर है 8-10 साल से और किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइंड नहीं है। तो मैंने कहा उधर बीजेपी ज्वाइन करोगे, वर्कर साहिबान बनोगे, उधर कार्यकर्ता साहिबान बनोगे, ये साहिबान बनोगे, वॉलंटियर साहिबान बनोगे। कहते बात ठीक है, लेकिन अपन ने 40,000-50,000 बंदा जोड़ा हुआ है पूरे पंजाब में, वो हमारी तरफ देख रहा है कि किस पार्टी में जाएगा तो कोई होप आएगी, कोई काम करा सकता है, कोई ना कोई लालच है तो वो कोई काम करा सकता है। तो अगर वो नहीं दिखेगा उन्हें तो वो हमारे बंदे टूट रहे हैं, 40,000 बंदे के 10,000 हो रहे हैं, 20,000 हो रहे हैं, 5,000 हो रहे हैं, तो हम डाई डाउन कर जाएंगे। एजेंडा किसी के पास है नहीं। द ओनली पॉलिटिक्स विच इज सस्टेनेबल इन दिस सिनेरियो इज काम करा लो जी, काम करा लो। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, काम करा लो। ਸੋ ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ 4 ਦਾਣੇ ਹੋਣ, ताकि
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। रितेश जी, हाँ, मसला ये है कि जो ये काम कराने वाले लोग हैं ना, ये है 10-1% एक विधानसभा में, ज्यादा नहीं है। 10% बनता है, लेकिन शोर इनका 90% है। अच्छा, ये लीडर के ऊपर प्रेशर माउंट कर ले जाते हैं कि नहीं वो पार्टी की सरकार है, उनकी चल रही है, क्योंकि ये जो 10% है सारा खलारा इन्होंने डाला होता है। थाने कचहरी इन्होंने ही फोन करवाने हैं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਪਈਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ना, 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 MLA लेवल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, MLA लेवल के साथ जो बंदे अटैच हैं, मैं वही कह रहा हूँ, हाँ, उसमें वो भी आ जाएंगे जिन्होंने काम करवाने हैं। ऑब्वियस है। वो वीडियो कर रहे हैं, एजेंटी का काम करते हैं, तो उनको ये है कि भाई जिधर पावर है उधर हो जाओ। तो वो अपने MLA या MP व्हाटएवर द केस इज, उधर ये माहौल बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार काम नहीं होंगे, क्योंकि उनके काम ही यही है। थाने में फोन कर लो, उसको छुड़ा लो, नाके पे रोक लिया जी, नाके पे फोन करा लो, अच्छा ये इसका समझौता करा लो, उसके पर्चे करा लो, ये करा लो। एक्चुअल पॉलिटिक्स है ही नहीं, ये तो गंद है भाई। 90% लोगों के कोई काम नहीं है थाने कचहरी के, ना उनको नाके पे से फोन कराना है, वो सारे कागज लेके चलते हैं, सारे कागज उनके पास है, पोजीशन तक भी बेचारे टाइम पे करा लेते हैं, उनके कोई काम नहीं है। उनके काम असली में है डेवलपमेंट, तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ इम्प्रोवाइजेशन, ये सारी चीजें हैं, गवर्नेंस। 90% पब्लिक ये है, बट वो 90% पब्लिक की जो ओपिनियन है उसके घुमाते हैं, उसको कान तक पहुंचती नहीं है, या वो सुनना नहीं चाहते क्योंकि खुद भी इसी लेवल के डफर है। वो कितनी समझ रखते हैं 117 MLA, ये तक तो पता नहीं MLA को पार्टीज के कि विधानसभा में लॉ कौन सा पास हो रहा है। 50-55 MLA से मेरी फर्स्ट हैंड इंटरेक्शंस हैं ओवर द पीरियड ऑफ पिछले सेशन। आप वालों से तो नहीं है, पहले वालों से है। पता ही नहीं बिल कौन सा आ रहा है, अच्छा बिल क्या है, लिखा क्या है, पढ़ना क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्कस करना है नहीं करना है। उनको लोगों से कोई वास्ता नहीं, ना उनके प्रॉब्लम्स की समझ है, ना ये। 90% 2 लाख वोट है ऑन एन एवरेज कॉन्स्टिट्यूंसी में, 90% वोटर का कोई थाने कचहरी का काम नहीं है, कोई वो ठगी ठोरी नहीं कर रहा, कोई वो क्राइम नहीं कर रहा कि जाके छुड़ा लो। वो ये इस काम के लिए जाते ही नहीं, वो शर्म से ही डूब जाता है। एक्चुअली ये है, अगर उसको फोन कराना पड़ जाए, उसको लगता है ये तो मेरे लिए शर्म की बात है, थाने फोन करना पड़ जाए, वो थाने से फोन आ जाए, इस बात से ही उसको शर्म महसूस होने लग जाती है। ये 10% की जो आबादी है एजेंटी वाली, ये प्रभावित करती है, ये कंप्लीट इन्फ्लुएंस करती है कि उस लीडर का, किसी भी लीडर का, उस हल्के के लीडरों को कि मैंने किस पार्टी में जाना है, उस पार्टी की हवा है, उस पार्टी का ये। बड़े रेयर लीडर हैं जो इस विशियस सर्किल से, इस 10% से ऊपर है, जो इनके इन्फ्लुएंस में नहीं है। मेजॉरिटी इनके इन्फ्लुएंस में है। तो वो दल बदलू वाले जो कॉन्सेप्ट है, उसमें इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रितेश जी इनकी दुकानदारी बंद हो जाती है। तो अगर इनका बंदा अपोजिशन में बैठ जाएगा तो थाने कचहरी में इनके फोन उठने बंद हो जाएंगे, नाकों पे इनके फोन नहीं चलेंगे, समझौतों में इनकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। ਅਸੀਂ ਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, तो इनकी इकोनॉमी है, जो इनका जो रोजगार है, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਮੋੜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और हाँ, और हर चाहे वो जितने भी जिले हैं, अपने 23 जिले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा हैं, जितनी कमिश्नरेट है, ये ऐसे अब इनका एक हाइब्रिड मॉडल भी है। तो ऐसे चौधरियों ने डायरेक्ट SSP ऑफिस से तालमेल कर रखा है, डायरेक्ट SDM ADC से तालमेल कर रखा है, कमिश्नरेट ऑफिस से तालमेल कर रखा है। अलग अलग कम्युनिटीज़ के ठेकेदार ये बने हुए हैं, जो नया अफसर आएगा उसको गुलदस्ते लेकर के ये सब पहुंच जाएंगे। इसे पता नहीं क्या हो गया, एक ये कल्चर बना रखा है ना। मतलब पता नहीं, एक ऑफिसर आया एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का, वहाँ पर उसको उसके बोर्ड लगाए जा रहे हैं, होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, और ये ऑफिसर लगवा रहे हैं। इनको कोई इतराज नहीं है, ये उससे बड़े वाले हैं, इन्हों दी ईगो ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕਿਕ ਮਿਲ हाँ हाँ, ये इनके बोर्ड बैनर लग रहे हैं, ये बने हैं PPS IPS, लेकिन ये लगवा रहे हैं धार्मिक पे अपने बोर्ड, फलाना समागम, फलाना यज्ञ, गरीब बच्चियों ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ DC की फोटो लग रही है, साथ में 4 लीडरों के। आप सोचो व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट द ब्यूरोक्रेसी एंड द लीडरशिप तो चलो उसको वोट लेनी है इसलिए चमका रही है, ये भी लगे हुए हैं साथ में ही। तो और ये सारा जो इकोनॉमी है, ये पूरी इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को जो चलाने वाले लोग हैं, वो दल बदलुओं का माइंड प्रिपेयर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10% ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕੋਈ मतलब हैगा कि कोई बंदा थाने कचहरी फोन करे या रूलिंग पार्टी में जाए, 90% को कोई लेना देना नहीं। then how do you explain मनप्रीत ਐਲੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, बट एक चीज है कि अकाली दल से टूट करके अगर वो आम आदमी ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਸੁਰਜੀਤ ਰਖੜੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ, ਸੁਰਜੀਤ ਰਖੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਐਲੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੋਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 20-25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। रखड़ा मैं इसमें नहीं मानता बिल्कुल कि 25-30 हज़ार, मैं 10,000 5,000 वोट भी नहीं मानता। जिस बंदे ने उनको ज्वाइन कराया भगवंत मान जी, इनके ही शब्द हैं कि ये चल्ले कारतूस हैं। मल्टीपल टाइम्स भगवंत मान सेड ऑन दीज पीपल, ये अकाली दल के चल्ले कारतूस हैं जी, चल्ले कारतूस हैं। अब वो चल्ले कारतूस ही उनको हार पहना के शामिल कराई जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ डेस्पिरेशन, कितनी डेस्पिरेशन में है मुख्यमंत्री। सेकंड वाला मनप्रीत ऐली ने मौजूदा सत्ता वाली पार्टी नहीं ज्वाइन करी, इसलिए हम उसको उस नजरिए से नहीं देख सकते। अगर उसने वो ज्वाइन करके अपने SSP और वही थाने कचहरी वाला प्रोसेस कराया होता, देन ऑल्सो ही वॉज पार्ट। वो तो ऐसी पार्टी में गया जिसका कोई बेस ही नहीं है, अभी वो रजिस्टर्ड है भी कि नहीं, वो स्टेटस भी नहीं क्लियर है। तो देयर इज आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। मैं पहले भी बात करी थी, यही चीज सुनील जाखड़ के पॉइंट पे भी बोली थी। और जब आपने ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੇਟਰ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਸਪੈਕਟ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की हैगी। बट मोर ओवर आई कंसीडर इट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, क्योंकि आप आज की डेट में ये फैसला नहीं कर सकते मनप्रीत ऐली जिस पार्टी में जाने लिए सोच रहा है या वो पार्टी में पावर में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं दिखता। ठीक है, कोई मिरेकल हो जाए तो अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि उस बंदे के दिमाग में भी होगा कि ये सरकार में आ जाएगी। आई नो हिम वेरी वेल। तो वो नहीं लगता कि कोई वो मुख्यमंत्री बन जाएगा या वो सरकार में आ जाएगी। वहां पे वो आइडियोलॉजिकल वाली चीज है, डे वन से वो आइडियोलॉजी वाली दूसरे ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਣਾ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई पार्टियां मानती ने। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, अकाली दल की अपनी पंथक रवायती पार्टी, बीजेपी की अपनी फिलोसफी है, फलसफा है, यू नो RSS बैक्ड पूरा का पूरा ਉਹਦਾ फाउंटेन हेड। आम आदमी पार्टी ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ, ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਡਿਫਾइन। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ये 4 साल से हुआ, पहले नहीं था। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਜਿਹੜੇ howsoever they might define their ideology, the point is ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਰਕਰ, ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਰਕਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ, ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਣਾ, ਵਰਕਰ ਅੱਗੇ ਲੜਨ, ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਓਨਲੀ ਨੀਡਸ ਵਿਨ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਯੂ ਨੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ MLA ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋ, विधायक बनते हो, एंड बल्ले बल्ले हो रही है थोड़ी। आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स इस मुल्क में खत्म हुए रितेश जी 10 साल हो गए। अब कोई आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स है ही नहीं। इस वक्त मौजूदा देश में जितने मुख्यमंत्री हैं सब दूसरी पार्टियों से लाए हुए हैं। इवन बीजेपी ने जिस स्टेट में भी अपनी एक्सपेंशन करी उसमें दूसरी पार्टियों के लीडर को ला करके ही उन्होंने एक्सपेंशन करी, नवे लीडर तो क्रिएट करे नहीं। अपना शुरू से ये एक सब्जेक्ट रहा कि
देयर इज ए सीरियस लीडरशिप क्राइसिस बिकॉज पॉलिटिकल पार्टियां, पंजाब की सियासी पार्टियां नवे लीडर प्रिपेयर ही नहीं कर रही। क्या कांग्रेस ने नवी भर्ती करी कोई कि आपको लीडर बनाते हैं जी, काउंसलर बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं? क्या अकाली दल ने कोई ऐसी नवी भर्ती करी कि नए एमएलए बनाते हैं, नए काउंसलर बनाते हैं, नए एमपीज बनाते हैं? क्या आम आदमी पार्टी ने ऐसी चीज करी? आम आदमी पार्टी ने तो डमी बना दी है ना, वो नए के नाम पे डमी है, लीडर नहीं है। वो नए फेसेस हो सकते हैं बट दे आर डमी। अब लीडर तो पार्टियों ने बनाने थे। जब पार्टियों ने अपने खुद के लीडर बनाए नहीं, काफी टाइम पहले 20-25 साल पहले स्टूडेंट विंग्स ये सारे होते थे कि नए स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में एंटर कराया जाता था वाया एनएसयूआई, वाया एसयूआई, वाया एबीवीपी। इनके थ्रू बंदे नए एंटर होते थे और उनको अपग्रेड करके ऊपर तक लाया जाता था। जो आज के दौर के सीनियर लीडर्स बने हुए हैं वो इसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हुए हैं। जितने भी सीनियर आप ले लो वो कहीं ना कहीं एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस या एबीवीपी या एसओआई में कहीं ना कहीं लोगों ने काम किया है। अब पिछले 15 साल से वहां तो काम बंद है। जिनकी बात आपने की कि वर्कर ये है, वर्कर वो है, वो तो सारे आज की डेट में सारी पार्टियों ने मजदूर बना रखे। उनको देना कुछ नहीं है। ना आम आदमी पार्टी ने अपने वॉलंटियर साहिबानों को कुछ दिया, ना कांग्रेस ने अपने वर्कर साहिबानों को कुछ दिया, ना अकालियों ने टकसाली वर्कर साहिबानों को कुछ दिया, ना बीजेपी ने कार्यकर्ता साहिबानों को कुछ दिया। ये सारे साहिबान ही रह गए। कोई कार्यकर्ता के नाम पे साहिबान रह गया, कोई वर्कर, कोई ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਾहिबान। मुझे गल तुसी एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कह रहे हो या एनालिस्ट कह रहे हो, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਰੇ ਜਕਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਲੋਗਨਸ 'ਚ ਨੇ ਵਰਕਰ, ਹੈ ਨਾ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ दे डोंट माइंड यू नो शिफ्टिंग द। अब असल में पार्टियों में रह गए सिर्फ वर्कर, वो अपनी यही तय कराने के लिए तैयार हैं, झंडा उठा के चल रहे हैं। लेकिन जो उनके ऊपर लीडर बिठाए हुए हैं निकम्मे, वो तो कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं कि उनको पावर से है। हाँ, वर्कर इज आइडल, वर्कर आइडियोलॉजी के साथ है, ये पक्की बात। अकाली दल का वर्कर जो है वो उनकी आइडियोलॉजी के साथ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ है। कांग्रेस का भी वर्कर चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, जितना भी बंदा है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ है। बीजेपी का अगर कोई वर्कर है, कोई संघ की बैकग्राउंड से है, पक्के बंदे हैं वो। पार्टियों की आइडियोलॉजी इन्हीं वर्करों के बेस पे है, लीडरों के बेस पे तो है ही नहीं। लीडर क्या, उनके चीफ मिनिस्टर भाग जाएंगे, एमपी भाग जाएंगे, एमएलए भाग जाएंगे। ये और कमाल, एक बात देखो आप कमाल की, कि जिस कोर ग्रुप के दम पे पार्टी खड़ी है, वर्कर उनकी आइडियोलॉजी का बली वारिस है, वो लेके चल रहा है, और उसी वर्कर की सबसे ज्यादा यही तही पार्टियां मारती हैं। उसके पल्ले कुछ नहीं है, उसके काम को लॉस होता है, उसकी जॉब को लॉस होता है, स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई को लॉस होता है, लेकिन अचीवमेंट उसकी जीरो है। इसीलिए ओपिनियन पंजाब बनाया ना कि वर्कर साहिबान, कार्यकर्ता साहिबान, वॉलंटियर साहिबान। अगर आपको वर्कर वॉलंटियर ये सब रहने का शौक है, पार्टी में रहो, वहीं काम करो। अगर आपको वहां वर्कर के साथ साथ वहां रहते हुए लीडर बनना है, आप ओपिनियन पंजाब ज्वाइन करो। 25,000 वोट पे लाते हैं आपको, आप उस लीडर के सर पे बैठ जाओगे। आपकी पार्टी। अच्छा दसो, ओपिनियन पंजाब च मेरी कमीशन की होएगी दसो? वो तुम इस मंच तो अपना एंटी पब्लिसिटी कर रहे हो, मैं डायरेक्टली पूछना है, इट्स नॉट अ पेड पॉडकास्ट, बट मैं सीधे पूछांगा कमीशन मैंने दो तुसी। हम तो जी जस्ट किडिंग, मजाक कर रहे सी, चंदे से चल रहे हैं, ठीक है। अभी तो आपस में ही ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੋਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਯੂ نو ਕਨਸੈਪਟਸ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਬਣ ਜਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਉਂਤ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ दल बदलूपना हैगा या यू नो वो लीडरों में है, वर्कर नहीं। आपने कभी सुना फलाने वर्कर दल बदलू हो गए, या उस पार्टी के इतने वर्कर छोड़ के चले गए, पुराने टकसाली ਹੁੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ शामिल हो गए। खबरों में हेडलाइन देता है लीडर की, अपनी फेस सेविंग भी तो करनी होती है कि हाँ इतने बंदे ले आया। एक्चुअल में वर्कर कहाँ ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ओहदा है नहीं, कोई बड़ा मोटा ब्लॉक लेवल पे कुछ है तो है। उन्होंने लोगों को कन्विंस कर करके अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ इतना एक बोल चुके होते हैं कि उनकी जरूरत ही नहीं होती कि वो पार्टी बदल ले। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਟ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਰਾਈਟ। बट हुन इस गलत कुछ नहीं एक नाम रखा गया था, आया राम गया राम, बड़ा पॉपुलर हुआ, ठीक है। अब वो नहीं है।
अब रीजन क्या है कि ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਚ Relevance ਜੁਮਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ Relevance ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੈਡਲਾਈਨ ਚ अब आप ਖਬਰਾਂ देख लो, ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਆਰਾਮ ਗੈਰਾਮ 9.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, 9.5 साल वो अकाली दल में भी रहे, बीच में छोड़ के अकाली दल चल गए, अपनी भी बना ली, एक जाट महासभा भी बना ली थी अपनी, तो काफी कुछ कर चुके। फिर मुड़ के अपनी एक पार्टी बना ली नवी इलेक्शन में, फिर बीजेपी ज्वाइन कर गए। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टियों की जो रेलिवेंस है वो अपनी रेलिवेंस को बनाए रखने के लिए लीडर्स इंपोर्ट कर रहे हैं और उनको कोई परहेज नहीं है कि अगर उनको विनिंग कैंडिडेट मिलता है, वो 10,000 वोट लेके आ रहा है, उनकी पार्टी पे टिकट लेके खड़ता है और इलेक्शन जीतता है, चाहे वो किसी पार्टी का है। आप अगर 15 से 20,000 वोट के दावेदार हो, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी सारे आपके तरले मिन्नतें कर लेंगी और आपको ले जाएंगी और एमएलए भी बनाएंगी और पावर भी देंगी। जो आपने नाम लिए वो सारे ऐसे ही हैं। जरूरत सिर्फ लीडर्स की है। लीडर्स की इसके डिमांड बहुत है, सप्लाई है ही नहीं ग्राउंड में। ये दल बदलू इस हो क्यों रहा है, इसका एक ये भी तो क्वेश्चन है ना, ये हो क्यों रहा है? दल बदलू इसलिए हो रहा है ना कि ए पार्टी के पास बंदा नहीं है, वो बी पार्टी से बंदा ला रही है। ए पार्टी के पास बंदा क्यों नहीं है? ए पार्टी ने बंदा बनाया नहीं, बी पार्टी ने बंदा बनाया था, वो ले गए। पंजाब की पॉलिटिक्स को अगर आप 25-30 साल पहले फॉलो करते हो तो इधर बीएसपी ने बहुत लीडर बनाए। अगर आप याद करो, मेजोरिटी लीडर जो पंजाब पॉलिटिक्स के एक्टिव हुए वो बीएसपी उनका ट्रेनिंग सेल था, उन्होंने लीडरशिप क्रिएट करी, फिर कांग्रेस या अलग अलग पार्टियों में वो चले गए और एमएलए कुछ ना कुछ बन गए। तो वो तो ट्रेनिंग कैंप रह गई बीएसपी। तो बाकी पार्टियां लीडर नहीं बना रही थी, बीएसपी का उतना आधार था नहीं, सरकार नहीं बनी उनकी, लेकिन उन्होंने लीडर जरूर क्रिएट करे थे, ये बात उनको क्रेडिट जाता है। तो और वो सारे पार्टियों ने लीडर लिए। मतलब जरूरत है कि आप अगर लीडर बनते हो तो सारी पार्टियां आपको लेने के लिए तैयार हैं। दल बदलू नाम की कोई नेगेटिव एलिमेंट अब वो नहीं रह गया, वो सिर्फ न्यूज चैनल की शाम की डिबेट में है, आया राम गया राम। ना किसी पार्टी को उससे कोई फर्क पड़ता है, ना वोटर को उससे फर्क पड़ता है। एट द एंड ये है कि जीता कौन इलेक्शन। सो फाइनली फिर पाठक साहब लार्जर पॉलिटिकल मैसेज की है राजनीति ਦਾ ਲਾਰਜਰ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫੀਨੋਮੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਫॉर देयर ਟੂ ਸਟੇ? ਹੁਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਨਿਗਾਰ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕਹਾਂ, ਦਲ ਬਦਲੂ ਪੁਣਾ, नो मोर अनटचेबल्स, ना लोगों ਲਈ ना पार्टियां ਲਈ, ਈਵਨ आइडियोलॉजिकली वेरी स्ट्रोंगली एम्बेडेड पार्टियां ਲਈ भी दल बदलू पुना कोई पनौती नहीं है। दौर निकल गया, वो दौर सीगा एक जिस टाइम पे लेफ्ट पार्टीज थी या लेफ्ट पार्टीज और ये कम्युनिस्ट पार्टीज थी, उस टाइम पे ये चीजें बड़ी अनटचेबल सी मानी जाती थी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਸਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਪਾਈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ। यस, बिकॉज एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी प्रिवेल करता है इन सारे बंदों के बीच में जिनके आपने नाम लिए। वो इतने इनसिक्योर हैं कि वो नई लीडरशिप डेवलप नहीं होने दे रहे। अगर आप विधानसभा वाइज, वार्ड वाइज और पिंड वाइज नई लीडरशिप को डेवलप होने की अपॉर्चुनिटी दोगे, फिर ये चीजें नहीं होंगी। कुछ बंदे हैं जो 4 टाइम 5 टाइम जीत रहे हैं, सरकार में नहीं आ रहे, फिर भी वो अपने इलाके में जीत रहे हैं, बट वो दल भी नहीं बदल रहे, क्योंकि उनको ये है एटलीस्ट अपोजिशन में है लेकिन अपने इलाके की नुमाइंदगी तो कर रहे हैं। एमएलए तो बने हुए हैं, सरपंच तो बने हुए हैं, काउंसलर बने हुए हैं, एमपी बने हुए हैं, इररिस्पेक्टिव की सेंटर में किसकी गवर्नमेंट आ रही है और स्टेट में किसकी गवर्नमेंट आ रही है, बट वो अपनी मुट्ठी पर बचे, ऐसे मुट्ठी पर लोग हैं। रीजन हाँ मुट्ठी भर है, उनके साथ लोग क्यों चाहें? अब ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਉਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10% ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਦ 90%। अब ऐसे मुट्ठी भर क्यों है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे बंदों को सपोर्ट नहीं करती। जो भी ऐसे बंदे हैं मजबूत हैं, जो मजबूत हैं, जड़ हैं, अपने इलाके में है, उनकी अपनी पार्टी हाईकमांड से नहीं बनती।
राणा गुरजीत हाईकमांड से नहीं बनती, मनप्रीत याली सुखबीर बादल से नहीं बनती। मनप्रीत याली जब बाई इलेक्शन अपनी जीता, मेरे से बात हुई, कहते मैंने कहा आपकी सुखबीर बादल से बिगड़ जाएगी इलेक्शन होने के बाद। कहते अच्छा वो बिगड़ गई? फिर कहते हाँ हो गई, बिगड़ गई। तो ऐसे जितने भी बंदे हैं जिन्होंने अपनी दम पे अपने हलके को जोड़ा हुआ है अपने साथ, उस 90% सेगमेंट को जोड़ा हुआ है, उनकी अपनी, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो अकाली दल के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, उनमें नहीं बनती। इवन बीजेपी में भी है, ये पंजाब की तो नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बड़ी लीडर है, अपने दम पे वोट रहे, हाईकमांड से नहीं बनती। और भी बहुत सारे लीडर हैं पंजाब में, तो कभी उनकी गवर्नमेंट आई नहीं, बनेगी जब कोई लीडर बन जाएगा उस लेवल का, फिर आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, जब तक बनती नहीं कह नहीं सकते। लेकिन जिस भी पार्टी में ऐसे मोतबार लीडर हैं, उनसे इनसिक्योरिटी प्रिवेल करता है, उनका स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल प्रेसिडेंट और व्हाटएवर द केस इज, और वो इनसिक्योरिटी करके उनको नेगलेक्ट करा जाता है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚयन ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ 92 ਐਮਐਲਏ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਪਾर्टी ਦੇ कन्वीनर दी, सुप्रीम लीडर दी कठपुतली है। ये एंड रबड़ स्टैंप तो बात कुछ नहीं ये है। पार्टी पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र लिए सबसे बड़ा डेंजरस काम है ये। क्योंकि जो पार्टी सुप्रीम बन जाता है, सो इसी वास्ते वो पार्टी दे सिर्फ लीडर दा मुंह झाकदे ने, जो पार्टी जो हाँ ये तो फिर ग्रास रूट भी फिर सीधा कहेगा ना भी साडी सीधा उत्ते तार जोड़ो अपना, यस कनेक्टेड। यस, अब फॉर एग्जांपल किसी नेशनल पार्टी ने अपना स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया यहाँ पे, अब उस स्टेट प्रेसिडेंट के अगर कैपेसिटी नहीं है, मान लो इनसिक्योर है, वो खुद कमजोर लीडर है, तो वो नीचे भी कमजोर लीडर ही बनाएगा। वो अपने अंदर किसी सेक्रेटरी, किसी जनरल सेक्रेटरी या किसी जिले प्रधान को इतना बड़ा बंदा नहीं बनने दे सकता जो 20,000 बंदा इकट्ठा कर ले, और स्टेट प्रेसिडेंट उसका 10,000 बंदा ना इकट्ठा कर पाए, तो वो तो छोटा हो गया। तो उसकी हाईकमांड देखेगी कि तेरा जो जनरल सेक्रेटरी है तेरे अंदर, या वाइस प्रेसिडेंट है तेरे अंदर, या जिला प्रधान है तेरे अंदर, वो 20,000 बंदा इकट्ठा कर सकता है, तेरी कैपेसिटी 5,000 की नहीं है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो वो अगर निकम्मा ला दिया पार्टी ने, तो आप ये समझो वो अपने से भी नीचे के निकम्मे लगाएगा, तो वो निकम्मों की आर्मी खड़ी होती है। अब एक नेशनल पार्टी ने अपना एक निकम्मा स्टेट प्रेसिडेंट लगाया हुआ है, उसने जिला प्रधान भी निकम्मे लगाए, उसने स्पोक्स पर्सन भी निकम्मे लगाए, तो पूरी पार्टी निकम्मों की हो गई। और जो सियाने थे, जो शार्प थे, या जिनके पास कैपेसिटी थी, उनको वो लगा नहीं रहा, क्योंकि वो लगेंगे तो प्रेसिडेंट की रिलेवेंस खत्म हो जाएगी, वो साइड पे। तो एक तरह से नवी लीडरशिप को तो मार दिया ना, खत्म कर दिया। अरे सब पार्टियों में हो रहा है, सारी पार्टियों में हो रहा है, सब पार्टियों में जो मेरिट है कम ज्यादा है बस। अब पूरा जैसे कॉर्पोरेट सिस्टम में भी हम देख रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ نو ਬਰੀਡ ਹੈ, अपने आले दुआले रखो एंड बी हैप्पी विद योर ओन। अपनी डिस्कशन को जितने लोग सुन रहे हैं और वो सियासी तौर पे किसी लेवल पे एक्टिव हैं, वो अपने आले दुआले झांक के देख ले कि क्या वो कोई काबिलियत वाला काम करते हैं तो उनको उसकी प्रेज मिलती है, या उनको साइड कर दिया जाता है। डेफिनेटली साइड कर दिया जाता है। वो एक पूरी स्टेट में एक निकम्मी लीडरशिप खड़ी हो गई है, निकम्मी, ऊपर से लेके नीचे तक निकम्मी। क्योंकि अपने यहाँ पॉलिटिक्स में इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, अगर कोई काबिल आदमी होगा तो वो इनसिक्योर नहीं होगा। किसी पार्टी का सूबा प्रेसिडेंट या कौमी प्रधान होना एक बड़ा सिक्योर काम होना चाहिए। उसको लीडरशिप क्रिएट करनी है, उसे अपनी लीडरशिप पे भरोसा चाहिए, उसे खुद पे भरोसा चाहिए, और अपनी नीचे कमांड पे भरोसा चाहिए। यस, वो तभी। और ये सिक्योरिटी है नहीं है, पॉलिटिक्स में होती भी नहीं है। नहीं, उसको अपनी लीडरशिप पे ही भरोसा नहीं है, बिकॉज वो खुद टैलेंटेड नहीं। उसको प्रधान इसलिए लगाया क्योंकि वो जी बजाता था दिल्ली जाके, उसे पता है मैं किਵੇਂ बनाया ना, पता। हाँ, तो उसको है कि अगर नीचे वाले ज्यादा सियाने आ गए तो ये डायरेक्ट हो जाएंगे, मैं खत्म हो जाऊंगा। तो वो सियाना बंदा क्यों लगाएगा? 10वीं फेल ग्रेजुएट को कैसे पढ़ाएगा? 10वीं फेल अगर आप हेड लगाओगे तो नीचे 8वीं वाला ही भर्ती करेगा, वो 6ठी वाला भर्ती करेगा। किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर ली स्टेट प्रेसिडेंट या मुख्यमंत्री
लीडर नहीं चाहिए, वो लीडरों का लीडर चाहिए। अगर वो लीडरों का लीडर होगा ताई वो नीचे लीडर क्रिएट करूं, अदरवाइज हाउ ही कैन क्रिएट लीडर्स। अगर वो खुद ही लीडर के लेवल पे है, मान लो कोई स्टेट प्रेसिडेंट की हैसियत सिर्फ अपने हलके की 10,000 वोट की है तो वो जनाब अपने वार्डों को, पिंडों को ही देख सकता है। वो 117 हलकों में 10,000 बंदे वाले कैसे इकट्ठा कर लेगा? जिसने पढ़ाई 10 जमात की करी है वो ग्रेजुएट को कैसे पढ़ाएगा? ये पार्टियां नहीं समझ रही या समझना नहीं चाहती। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो समझ भी रही है, समझती भी हैं। उनको ये है कि ऐसे लीडर खड़े नहीं करने जो हमारी अथॉरिटी को चैलेंज कर दे। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਦੈਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਪਰਸ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ, ਚੰਗਾ ਕਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀ, whosoever it may concern। क्योंकि पार्टियों ने ऐसे फेर के रखी हुई, पार्टियां हो जी, पार्टियां ऐसे सी है। मतलब पार्टियों ने इतना गंद डाला हुआ है, वो लीडर बनने नहीं देते। हाँ, इसमें सारे तो पाक साफ नहीं हो सकते। कुछ वाली जमात भी होंगे जो पावर के साथ घूम गए, पावर आ गई, वो वाले भी हैं। तो सबको एक में नहीं, बट एक सेक्शन वो भी है जो जिसकी पावर आई, जो दलाली करने के लिए उधर लग गया। वो पॉलिटिशियन के फेस में दलाल हैं, बेसिकली दल्ले हैं वो। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके नाम क्या लेने, लेकिन वो सेगमेंट भी है। और ये हर किस्म ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਮੇ ਬਦਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੈਰੀਬਲੀ ਰੋਂਗ। ਫॉर इंस्टेंस ਅਯਾਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਥਰੂ ਦੈਟ, ਨਾਟ ਬੀਨ ਥਰੂ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੱਛਣ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇ। ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਜਸਟ ਬੀ ਦ ਕੇਸ। ਫਿਰ ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝੋ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ, ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। यस, मतलब पार्टी का स्टैंड चाहिए है। अगर पार्टी पावर में नहीं भी है तो फिर भी अपने लीडर्स को संभाल के तो रखे, उनको इम्पोर्टेंस तो दे। मैं कुछ चीजें नहीं बोलना चाहता जो मनप्रीत याली के साथ अकाली दल में किया गया, कुछ बंदों को उधर लगा करके। नहीं, वो तो आईटी टीमों ने कितना ट्रोल किया, जबकि मनप्रीत अयाली, when he was working in the अकाली दल, he was very well in the अकाली दल, तभी दूसरे निकम्मे ਲੀਡਰਾਂ को उसके ऊपर लगा करके कंट्रोल करने की कोशिश। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਟ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯਾਲੀ ਵਾਸ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਅਗਲਾ ਮੋਰੀ ਸੀਗਾ, ਅਗਲਾ ਹੀ ਵਾਸ ਲੀਡਿੰਗ दैट काइंड ऑफ चेंज। यस, बट टारगेटिंग का इनिशियल पॉइंट ये था व्हेन ही वॉन द बाय इलेक्शंस इन द कांग्रेस गवर्नमेंट। वहां से टारगेटिंग शुरू हुई थी क्योंकि ही प्रूव्ड दैट आई एम द लीडर। जलालाबाद भी बाई इलेक्शन हुई थी, जलालाबाद अकाली दल हार गया थी, दाखे जीत गए थे, और दाखे सुखबीर और इनकी कंट्रीब्यूशन नहीं थी कोई ज्यादा, वो अपने दम पे जीत गया था। वो जीतने के बाद डिफरेंसेस क्रिएट हुए। द मेन पॉइंट इज कि लीडर टॉलरेट नहीं कर रहा, सर्वाइवर्स ਨੂੰ टॉलरेट नहीं कर रहा। मतलब आप ਜਦੋਂ ਕਿ ऐसा कारण कोई नहीं होना चाहिए क्योंकि खुद इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी का दी सुखबीर हिमसेल्फ वन 2019 ही वन द पार्लियामेंट, उन्होंने का इनसिक्योरिटी होनी चाहिए। ना फिर भी है, यही तो सोच है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट है तो 92 एमएलए को पावर दे देनी चाहिए। वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, लोगों के काम कराने की अथॉरिटी हो। इनके मंत्रियों की इतनी हैसियत नहीं है। मंत्रियों के पीछे एक चिंटू छोड़ा हुआ है इन्होंने कि मीडिया में नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कोई फाइल नहीं क्लियर करनी। तो एमएलए की क्या हैसियत होगी, आप अंदाजा लगाओ इस बात से। तो हाउ अरविंद केजरीवाल इज इनसिक्योर, तो सुखबीर के पास तो सरकार नहीं थी। तो इनसिक्योरिटी प्रिवेल कर रही है सबके माइंडसेट में। कई बार मान लो आप सुखबीर के पे इनसिक्योरिटी नहीं तो आले वाले इनसिक्योर कर दे रहे हैं। नहीं जी, वो बड़ा लीडर बन जाएगा, वो अपने लिए कल को चैलेंज हो जाएगा। ये क्योंकि वो साथ वाले इनसिक्योर हो रहे हैं कि ये बड़ा हो जाएगा, हमारी रिलेवेंस खत्म हो जाएगी। तो ये नहीं लगता सारी गल्लां सुन के, समझ के, डिस्कस करके, या वी इवन अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਲ ਬਦਲੂ, ਮੌਕਾ ਪਰਸਤੀ, ਖੇਮੇ ਬਦਲਣਾ, ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ, ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ these are the, ਹੁਣ they have become the standard SOPs। are they the SOPs, rightly, ਯਾਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਹਨਾ,
ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜੋ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਚਲੋ ਗਿੱਦੜ ਬਾਹੇ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ Calculation से। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਜਿੱਤੋ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਅਗਲੀ ਆਏਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ वही बंदे हैं जो ए पार्टी की पावर है तो वो पावर सर्किल के आसपास आ जाएंगे, बी पार्टी की पावर है तो उसके साथ आ जाएंगे। तो क्योंकि रीजन ये है ये पार्टियों के और सरकारों के कमाऊ पूत होते हैं। तो जैसी गवर्नमेंट आती है ये उसको सराउंड कर लेते हैं, फिर ये जो पहले पार्टी के लिए काम कर रहे होते थे ये दूसरी पार्टी के लिए 10% ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 10% ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰਸ ਔਰ ओपिनियन मेकर्स तो नहीं जो ਉਹਨੂੰ कैटलिस्ट ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कैटलिस्ट ऑफ अ नेगेटिव काइंड ऑफ अ चेंज राइट हाँ वो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी चला रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी चला रहे हैं तो क्योंकि जैसे ही वो बंद होगा ये सबसे बड़ी जमात है पॉलिटिकल बिरादरी की जो बेरोजगार हो जाएगी। पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट मैं कई बार शब्द यूज करता हूँ, ये पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही बहुत ज्यादा है और उसका रेशियो बहुत बढ़ जाना है। तो ये अपनी एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए कंटिन्यूअसली पावर के साथ साथ घूमते रहेंगे उनको। और वो दल बदलू वाला कंसेप्ट जो अपना बेस था, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज खुद जिम्मेदार हैं, ना कि वो बंदे जो दल बदल रहे। उन्होंने लीडर बनने नहीं दिए, उन्होंने स्कोप नहीं दिया, स्पेस नहीं दिया ग्रो करने का। अगर आप चाह रहे हो कि मैं एक हल्के का लीडर हूं, मैं 4 का बन जाऊं, तो क्या बुराई है? अगर वो 1 में जीत रहा है वो 4 में बन जाएगा। अपने 4 बंदों को वहां खड़ा कर रहा है। पार्टीज के प्रेसिडेंट, उसके ऊपर के लोग इनसिक्योर हो रहे हैं। अच्छा, ये तो कैंप बना लेगा अपना, ये तो इसके 4 MLA हो गए, इसके तो 10 MLA हो गए। ट्रेडिशनली ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਦਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਛੱਡੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਈ क्यों करा ऐसा क्यों करा? ਅੱਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀਰਭੱਦਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਦਿਆ ਸਟੋਕਸ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸੋ ਦੈਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ सेंटर ने एक बैलेंसिंग जी फैक्टर रहे थे, हाई कमांड शुड रिमेन स्ट्रांग। मैं वीरभद्र जी का नाम लिया, मैं एक बार उनके साथ ब्रेकफास्ट पे बैठा था, बड़ी लंबी डिस्कशन हुई। कहते दिल्ली वाले मेरे पीछे किसी ना किसी को लगा के रखते हैं ताकि मैं इधर काम ना कर पाऊं। बड़ा कुछ सीखने को मिलता था, ही वाज अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस। तो मतलब ये क्यों करती हैं पार्टियां? कोई एक लीडर बना, उसको इंडिपेंडेंट काम नहीं करने देंगे, पीछे छोड़ देंगे। मैंने पूछा 2-3 पार्टियों में टॉप पे पूछा, कहते अगर खुला छोड़ दिया ना ये हमारे को खा जाएंगे हमारे को चैलेंज कर देंगे आगे, तो इनको नीचे एंगेज करो। तो राज करने का तरीका ये है पॉलिटिकल पार्टीज का कि लीडर अगर कोई है तो उसको उलझा के रखो 2-3 जगह पे। अच्छा कोई और बनना चाह रहा है उसको उठाओ और उसके साथ बढ़ा दो। बनने किसी को नहीं देना है, एंगेज रखना है उनको ताकि दोनों में से कोई ना बन पाए। टारगेट ये। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ये करके इफ यू सी दैट डीके जे उन्होंने भजन लाल, अरे आप हरियाणा की एग्जाम्पल लो, 5 मुख्यमंत्री कैंडिडेट, जीती हुई सरकार गवा दी। पंजाब 4-5 मुख्यमंत्री कैंडिडेट, पिछली इलेक्शन में लाइन लगी हुई मुख्यमंत्री कैंडिडेट। हम देखो इस बार भी दावेदार बहुत ने, है ना। पिछली बार तो स्ट्रॉन्ग दावेदार थे, इस बारी तो ऐ ही फोका फायर है ठीक है, वो अभी घर बैठे मुख्यमंत्री है। मतलब 15,000 वोट अपने हल्के से बाहर है नहीं। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਤਾ, मतलब ਕਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਚੁੱਪ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ नहीं रियलिटी है, अगर रियलिटी है, मैं चैलेंज है जो भी अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट कहता है हमें बताए, हम बता देते हैं कि तेरी आपकी कितनी वोट है, किस हल्के में, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में। कोई बंदा नहीं है ऐसा। तो कहने का मतलब है पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टीज ने, जब मैं पॉलिटिकल पार्टीज को एडवाइस देता था, उनके नेशनल लेवल ने ये मांगा मेरे से, मेक अस ए फॉर्मूला, अपने को फॉर्मूला बना के दो कि हमें ये लीडर चाहिए ही ना हो, हम सीधे अपने फेस के दम पे गेम करें, हमें ये बंदे नहीं चाहिए, हम जिसको खड़ा कर दें वो जीत जाए। मतलब प्राइम मिनिस्टर लेवल पे लोग हैं जिन्होंने ये बात बोली। मतलब फिर दल बदलू माड़े नहीं, पार्टियां ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਟਸ ਕੰਕਲੂਡ ਦਿਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਟ੍ਰੇਟਰ, ਹਨ ਟ੍ਰੇਟਰ ਕਿਹਾ ਗੱਦਾਰ। ਹੁਣ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਰ ਗੱਦਾਰ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਪਾਂ ਥੰਬਨੇਲ ਯਾਰ ਗੱਦਾਰ ਹੀ ਦਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ ਵੀ, लेकिन गद्दारी इस वास्ते नहीं है क्योंकि पार्टियां खुद जिम्मेवार है। इस गद्दारी के लिए
सवारी खुद जिम्मेवार है ना, जो हालात बंदा मैं ऐसे समझ पैदा गया। करती है, हालात ऐसे पैदा करती है, लीडर्स बनने नहीं देती। हाँ, कुछ होंगे उसमें अपॉर्चुनिस्ट जिनको सब कुछ मिला, उनको लीडर भी बनने दिया, उनको एमपी भी बनने दिया, उनको सीएम भी बनने दिया, फिर भी वो कर गए। वो एक है 2% 4%, वो भी कैप्टन अमरिंदर का केस उस चांदा है, यस यस, तो वो बंदे भी हो। एंड इवन शायद कुछ हद तक सुनील जाखड़ का भी केस उस चाहे। नहीं, उसमें एक इंस्टेंस आ जाता है जब वो 40 एमएलएज ने वोट डाल दिया कि आपको सीएम बनाना चाहिए, फिर दिल्ली से कोई इनकी लीडर गांधी फैमिली को एडवाइस देती है, नहीं जी हिंदू नहीं बनना चाहिए, ये घटिया पॉलिटिक्स करी गई वहां पे हाई कमांड की, तो वो केस अलग है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का आता है, वो एक रीजन बना ना यहाँ पे, वहां तो कोई रीजन नहीं था। बिट्टू के केस में बिट्टू तो एमपी था, तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो इलेक्शन दोबारा लड़ाई गई, आप तो खुद हार गया, फिर क्या कर सकती थी कांग्रेस। लेकिन ऐसे बहुत कम केसेस हैं, 2-4, मेजोरिटी वही है कि जो फंसे या जहाँ उनको लगता है कि भाई पार्टी अब नहीं जा रही उस डायरेक्शन में, उस फॉलो अप पे नहीं कर रही। अब बंगाल की आप एग्जाम्पल दे दो, सारी टीएमसी खाली हो रही, बीजेपी में जा रही है। तो ये टीएमसी खाली हुई होती इलेक्शंस की पहले, फिर अलग बात थी। सरकार बनने के बाद जा रही, मतलब 2 महीने में उन्हें काम कराने पड़ गए। मतलब वो इकोनॉमी वाले हैं वो। या ਉੱਥੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ वो ਕਈ दोनों ਕਿਸਮ ਦੀ चीजें- ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ दोनों ਹੈ, चीजें। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੋਈ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਨੇ ਗੜੇ ਮੁਰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵਾਸ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਨਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। और ये भी उन्हीं के पीछे चलेगा ना जिनके पल्ले कुछ हो, तो मतलब पल्ले कुछ है। एवं ही डमी बंदे के पीछे तो कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाला कि वो वेस्ट करके निकाले जाए। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਦਾਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗੱਦਾਰ ਟ੍ਰੇਟਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੱਕ ਹੋਏ, ਪਰਚੇ ਤੱਕ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਭਜਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹਰਭਜਨ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਖੋਲੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕਾਊ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਈਬ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ। अकेला हरभजन नहीं, आपको याद होगा इन्होंने बाकी जो सारे एमपीज थे उनके घर की कंधों पे, फैक्ट्रियों पे जाके गद्दार लिखे। डॉक्टर सुखी बंगे से अकाली दल का बंदा इन्होंने ज्वाइन कराया, अकाली दल ने उसकी जाके कंध पे लिखा गद्दार। कोई कार्रवाई करी इस तरह की नहीं करी, ना ही किसी ने इस तरह का मुद्दा उठाया। बात ਝਟਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ, 7 MP ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹਰਭਜਨ ਵੀ ਇਸ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। पहले भी बंदे गए हैं, लेकिन इस तरह की हरकत की जाके गद्दार लिखना, ये करना। अभी आप डिस्कस करें कि पार्टियां ही जिम्मेवार हैं इस दल बदलू के लिए, लीडर बहुत कम जिम्मेदार हैं, ऐसे 2-4% ही होंगे। अब जो भज्जी ने ट्वीट करा सारा डिटेल में, सारा पब्लिक डोमेन में, आपने उस पर डिटेल्ड प्रोग्राम भी करा सीरीज के हिसाब से कि क्या क्या हुआ, वो क्लियर कट तो बंदा कह गया कि मेरे को गद्दार कह रहे हो, तो जाके अपनी पार्टी के सुप्रीमो से पूछ लो कि किसने मेरे से क्या लिया, मेरे से लिया नहीं लिया, जो भी उसने एग्जैक्ट वर्डिंग मेरे को नहीं याद, बट साफ कहा कि इनडायरेक्टली कित्थों की ब्राइब ली गई। हाँ, मतलब इसका मतलब एंड राज्यसभा, पंजाब राज्यसभा मेंबर्स, आपको याद होगा अपने 1-1.5 महीने पहले प्रोग्राम करा, उसमें ये जिक्र कर दिया था कि ये गद्दारी नहीं है, टाइटल भी सीगा, गद्दारी नहीं है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये, तो वही निकला 1 महीने बाद भी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। वही कोई एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में ये देना था, ये लेना था, ये सब हो रहा था। अब वो ट्रांजैक्शंस पूरे नहीं हुए या इनकम्प्लीट हुए, भज्जी ने ये बात क्या है तो दी, अंदर तो ये डर गए होंगे, मुड़ के तो मेरे ख्याल इन्होंने कोई जवाब दिया नहीं, सिवाय माड़ा मोटा सा छोटे मोटे वो जो लीडर होते हैं वो क्रिटिक्स होते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं। भगवंत ने भी एक बारी बोला कि हाँ बताओ, जो जोश में बोल दिया, पीछे से थापी आ गई होगी कि चुप कर जाए, अभी खुल जानी है पोल, तो अगले ने कुछ तो दिया ही होगा, तभी ऐसी बात। हरभजन ने कहा कि जे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं दसूंगे तो फिर मैं दसांगा कि होया। इट मींस दैट ही नोज अ लॉट। यस, तो नाउ अब आप देखो कि जब इस तरीके से आपने किसी ट्रांजैक्शन के थ्रू कोई पॉलिटिकल पोस्ट दी थी, तो गद्दार कहने की आपका हैसियत क्या है, आप कौन होते हो?
वो तो आपने ट्रेडिंग करी थी ना। सो ना तो राहुल गांधी गद्दार कहता, अच्छा हाँ वो गद्दार अगर रवनीत बिट्टू को कह रहा है कि किसी कॉन्टेक्स्ट में, वो तो फिर भी बात थोड़ी सी एक अलग एंगल से समझी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर गद्दारी, वो जीत के जा रहा था, टिकट दी गई थी। अब रवनीत बिट्टू ने ये तो कभी कहा नहीं कि मैंने पैसे दे के टिकट ली, कभी नहीं बोला ये बात। मतलब उसने दी टिकट कांग्रेस ने और वो एमपी बना इसलिए बोला। लेकिन यहाँ पे जब आपने सामान लेकर के चीज दी तो गद्दार कैसे है? मतलब मैंने कहीं दुकान पे गया, मैंने कोई सामान खरीदा, मैंने फ्रिज खरीदा, मैंने एलसीडी खरीदी, अब वो खरीद के मैं जाके मैंने नहीं रखी, मैं कहीं और ले गया दुकान पे। अब वो दुकान वाला आया और कहता तू गद्दार है जी, तूने मेरे से सामान खरीदा था, तूने अपने घर नहीं रखा, दूसरे को दे दिया। फिर अगले ने कह दिया मैं तेरे को बिल कटा के लेके गया और ये करें गद्दार। तो अल्टीमेटली वही बात आ गई ना, पार्टियां जिम्मेदार हैं। तो अगर भज्जी ने इतनी बात बाहर निकाली तो अंदर कितनी कहानी होगी। अगर इतनी पब्लिक डोमेन में डाल दी उस बंदे ने तो बिल्कुल क्लियर है। ये तो भज्जी की अपनी कॉन्शियस है कि अगर वो उन्होंने दसना चाहिए, मैं मानता है कि भज्जी इज अ रोल मॉडल फॉर सो मेनी यंगस्टर्स। सो ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ ਪਛੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਪਿਕਚਰ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ अगर भज्जी झूठ कह रहा है आम आदमी पार्टी को डिफेमेशन कर देना चाहिए। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हाँ डिफेमेशन ਹੋਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਿਆ। डिफेमेशन कर देते, पर्चा कर देते कि झूठ बोला। पर्चा नहीं तो एटलीस्ट डिफेमेशन कर देते। इसका मतलब भज्जी ने जो बात बोली सही बोली। ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਡਰਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। इसका मतलब कोई बेस है भज्जी के पास, उसकी बात में लॉजिक है और कुछ फैक्ट्स हैं। जब वही ना मैं एग्जाम्पल दी कि मैं जाके दुकानदार से टीवी खरीदा, टीवी ले आया, मैंने मुड़ के किसी और को दे दिया टीवी, और वो दुकानदार कह रहा नहीं तू गद्दार है, तूने टीवी खुद नहीं रखा। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केस से ज्यादा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये गद्दार कैसे? मतलब आम आदमी पार्टी ने 2012-13 की इलेक्शन लड़ी, अपने दम पे लड़ी इलेक्शन, मुड़ के कांग्रेस के साथ अलायंस करके 28 एमएलए लेके दिल्ली में सरकार बना ली। तो गद्दारी है। तो ये भी गद्दारी हुई क्योंकि आपने वोट तो अपने नाम पे मांगा था, अलायंस में तो इलेक्शन लड़ी नहीं थी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 7 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਜੋ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਥਿਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ परिभाषा ही बदल जाती है उस गद्दारी दी या दल बदल पुणे दी। ये 7 बंदे कह रहे हैं कि वो चल गए, वो गद्दार है। तुम जो 92 में से 30-40% जो दूसरी पार्टियों के 50% बंदे लाए हो, वो भी तो गद्दार हुए फिर उसी डेफिनेशन में। अगर वही डेफिनेशन लेते हो आप, इनके पास तो बंदे थे नहीं, ये तो सारे बंदे कांग्रेस, अकाली दल, बाकी पार्टियों का रिजेक्टेड। चलो फिर वो तो कह सकते हैं ना कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਤਵਾਏ ਵੀ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ बैनर, ਸਾਡੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇ। बट वो लीडर तो अपने उधर बने हुए थे ना, अपने बने बनाए लीडर लिए। गद्दारी तो फिर वो भी हुई, किस परसेंटेज पे गद्दारी हुई वो एक सब्जेक्टिव मैटर है, बट गद्दारी तो हो गई इनिशियली, थे वो दूसरे बंदे के। तो जो आप करो तो आपका कुत्ता टॉमी, बाकी लोगों का कुत्ता। मतलब जो चीज आप करो, खुलेआम करो, नंगा नाच करो उसका, डॉक्टर सुखी को ले जाओ तो कोई डिफेक्शन नहीं है, आपके साथ एमपी चले गए तो डिफेक्शन हो गई, चाहे वो 2/3 थे, यहाँ तो 2/3 भी नहीं थे, ठीक है। भज्जी उधर चल गया तो वो गद्दार, चाहे वो आपसे ट्रेड करके गया, खुल्लम खुल्ला बात हो गई। आपसे कोई आप सामान बेच रहे हो, दुकानदार हो तो दुकानदार की तरह रहो ना। साहूकार है तो साहूकार ही बनवाना। ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਵੀ अपने चलाया हुआ है लाला जी। ਚਲਿਏ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਉਹ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਘਿਰਣਾ 'ਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਲ ਬਦਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।